Hello children, I am Kruti Prajapati, your English teacher. Today I am going to teach you our grammar portion, chapter 3, the use of pronoun. First of all we discuss what is pronoun. So then pronoun. A pronoun is a word that takes the place of noun or nouns in a sentence. जैसे कि कोई भी सेंटेंस में जो नाम होता है उसकी जगह पे हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं. वैसे तो आप सभी ने 4th स्टैंडर्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े होंगे. जस्ट लेट्स रिवाइज different kinds of pronouns. Which different kinds? Personal pronouns, demonstrative pronoun, reflexive pronoun, possessive pronoun, etc. Now we start the use of pronouns. Okay, the use of pronoun. First we will discuss personal pronoun. Pronoun of the first person. Where are first person? I, my, mine, me, we, our, ours, us, myself and ourself. Then second person is what? You, your, yours, yourself, yourselves. And the third person is he, his, him, himself, she, her, hers, herself, it, its, itself, they, their, theirs, them and themselves. Now after we discuss case of personal pronoun, in which case we use a personal pronouns, तो the following pronouns are used as a subject. इनमें से जो जो pronouns है वो subject के तौर पे use होते हैं. वो कौन से हैं? I, we, you, he, she, it, they. And the another following pronouns are used as an object. So which pronouns are used as an object? Me, us, you, him, her, it and them. And the another pronouns types is the following pronouns are used as possessive adjectives. What is called possessive adjectives? So my, our, your, his, her, its and their. These all pronouns are called possessive adjectives. These pronouns work as an adjective. There are some other pronouns work as a adjectives and they always take a noun after them. For example, its legs. तो उसमें pronoun कौन सा होगा? Its. My ball. तो my it's a pronoun. His pen. तो his. उसी तरह से some other examples are there. Here, her pencil, their teeth. Now we explain the following words in a possessive pronoun. सब कई ऐसे words भी हैं जो हम possessive pronoun में use कर सकते हैं. Which are they? Mine, ours, yours, her, its and theirs. Some words ऐसे भी होते हैं जो words are pronoun but not adjective and they never take a noun after them. और वो कभी भी noun के बाद में नहीं है. जैसे कि this book is mine. Mine is equal to my book. ये प्रेफर कर रहा है कि ये वाली जो बुक है वो किसकी है? मेरी. That pen is hers. Hers means her pens. तो यहाँ पे hers ये डिस्क्राइब कर रहा है कि ये जो पेन है वो किसकी है? वो लड़की की. My dog and yours are both lovely. Which pronoun used in this sentence? Yours. But what is the meaning of you? Yours? Yours means your dog. मतलब कि मेरा कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता दोनों ही अच्छे हैं. I got my share and she hers. Which pronouns are used in this sentence? My and hers. But what is the meaning of hers is equal to her share. Okay. Then now we discuss the reflexive pronoun. The following pronouns are called reflexive pronoun. Which pronouns are reflexive pronoun? Myself, ourselves, yourselves, yourselves, himself, herself, itself and themselves. Now reflexive pronouns are used as an object. कई बार क्या होता है कि जो reflexive pronouns होते हैं वो object के तौर पे भी use कर सकते हैं. They are used when the subject and the object are the same person. पर कब use कर सकते हैं? जब subject और object दोनों ही same person यानी कि एक ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं. तो now we discuss with more examples.
जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं शी इज लुकिंग एट हिम। तो यहाँ पे देखिए शी एंड हिम दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन। अनदर पिक्चर्स में देखिए शी इज लुकिंग एट हर सेल्फ। तो यहाँ पे दोनों ही जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही हैं वो किस तौर पे है, सेम पर्सन। अनदर 2 एग्जाम्पल्स आर डिस्कस एंड देन यू sort your doubts. She is talking to him. So here she and him they both are different person. Another examples is are that she is talking to herself. ये आप खुद से ही बातें कर रहे हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही है वो सेम पर्सन है। Now उसके बाद we will discuss some exercise according to our textbook. Then first exercise is कंप्लीट दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पे आपको ये पूरा टेबल दिया हुआ है, आपको प्रोनाउन ये पर्सनल प्रोनाउन के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट सिंगुलर का है, सिंगुलर में है सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, प्रोजेसिव एडजेक्टिव्स एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फर्स्ट आर दैट आई, तो आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव होगा माई, उसका पोजेसिव प्रोनाउन होगा माइन और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। उसी तरह हम शी को लेके आपको एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट शी, तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, हर, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव हर और उसका पोजेसिव प्रोनाउन हर्स एंड रिफ्लेक्सिव हरसेल्फ। नाउ वी डिस्कस सम प्लूरल एग्जांपल्स। फर्स्ट वी डिस्कस वी, तो वी उसका क्या होगा अस, फिर अवर, फिर अवर्स एंड अवर सेल्फ्स। उसी तरह आपको ये सब पूरा टेबल कंप्लीट करना है एंड आई गिव देम ऑल बाय माय PDF। नाउ वी डिस्कस अवर अनदर एक्सरसाइज। चूज वर्ड फ्रॉम द अबाउ टेबल्स फॉर ईच ब्लैंक्स। ऊपर जो आपको टेबल्स दिया है आपको उसको यूज करके ये पूरा प्रोनाउन उसमें फिलअप करना है, पर मैं एक्सप्लेन करके आपको सब समझाती हूँ। दैट्स रोजी, ब्लैंक इज माई सिस्टर। दैट्स रोजी, तो रोजी है तो उसके लिए विच प्रोनाउन वी यूज, शी। वी एंजॉय ब्लैंक मच लास्ट नाइट, वी एंजॉय, तो वी के लिए हम कौन सा वाला यूज करेंगे, अवर सेल्व्स। उसके बाद अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि निशा इज अ नाइस गर्ल, वी ऑल लाइक ब्लैंक। तो निशा के बारे में बात की है कि वो एक अच्छी लड़की है, तो निशा से रिलेटेड कौन सा प्रोनाउन इसमें हम फिलअप करेंगे, हर। उसके बाद अनदर एग्जांपल है डोंट प्ले विथ फायर, तो यू विल बर्न ब्लैंक। आपको यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको फायर के साथ खेलना नहीं है, अदरवाइज क्या होगा, आप जल जाएंगे। तो यू विल बर्न, तो उसमें आएगा योर सेल्फ। नाउ वी डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प ब्लैंक। तो इसमें आपको ये बोला गया है कि मुझे एक प्रॉब्लम है, तो क्या आप मुझे मदद करोगे, तो उसमें आई से रिलेटेड यूज करना है, सो वी कैन यूज मी। नाउ वी डिस्कस some another examples. This is not Lucy's house, blank is next door। ये वाला जो घर है पॉइंट आउट करके बताए कि ये वाला घर लूसी का नहीं है, तो कौन सा है उसका, तो उसके बाद वाला। तो इसमें किसकी बात की हुई है, लूसी की, बट तो यहाँ पे वो वाला नहीं है, उससे बाद वाला, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन हर्स। उसके बाद है माई फ्रेंड एंड आई डोंट हैव एनी मनी विथ ब्लैंक, मैं और मेरे दोस्त हम दोनों के पास कुछ भी पैसे नहीं है, तो इसमें नहीं अकेला माई फ्रेंड से रिलेटेड आई दोनों को कंबाइन करके आप फिर यहाँ पे प्रोनाउन में यूज करेंगे अस। नाउ वी डिस्कस अवर अनदर एक्सरसाइज विथ सम एग्जांपल्स। फर्स्ट ये पिक्चर आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि ब्लैंक लव ब्लैंक डू लव ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ये बोल रहा है, तो आई लव यू एंड डू यू लव मी। उसी तरह से ये वाला पिक्चर आप देखिए, उसको देख के पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से गुस्सा है। तो फर्स्ट इसके जैसे कि ब्लैंक इज एंग्री विथ ब्लैंक एंड ब्लैंक इज एंग्री विथ ब्लैंक, तो यहाँ पे फर्स्ट हम इनकी बात करेंगे, तो ये किससे गुस्सा है, इनसे, तो ही इज एंग्री विथ हर, और ये किनसे गुस्सा है, इनसे, तो शी इज एंग्री विथ हर। ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज दैट कंप्लीट दिस लेटर टू अ पेन फ्रेंड एंड सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पे आपने अपना एक फ्रेंड है, उसको अपना एक फ़ोटो भेजा है और अपने फैमिली के बारे में डिस्क्राइब किया है,
तो उसके अकॉर्डिंग इस ब्लैंक में कौन से प्रोनाउन, विच प्रोनाउन यू यूज इन दिस ब्लैंक्स, वो आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाती हूँ। जैसे कि आई एम 12 years old, हियर्स ब्लैंक फोटो, तो यहाँ पे इसका फोटो इसीलिए मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो मैं माई लिखूंगी, आप भी अपने बारे में बात कर रहे होगे तो भी आप यहाँ पे दूसरे को अपने बारे में बता रहे हो, इसलिए वी यूज माई। देन आई हैव गॉट 1 brother and 1 sister, ब्लैंक सिस्टर नेम इज टीना, तो यहाँ पे आपने अपने बहन या भाई के बारे में बात की पर यहाँ पे पर्टिकुलर सिस्टर का ही बोला है, तो यहाँ पे माई सिस्टर, मेरी बहन। ब्लैंक इज वेरी नाइस, अब उसके बारे में डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पे हम अब यूज करेंगे शी। एवरीवन लाइक्स ब्लैंक, सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे हर। उसके बाद माई ब्रदर नेम इज टॉनी, पहले जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया था भाई और बहन दोनों के लिए, तो पहले उस सिस्टर के अकॉर्डिंग हमने समझ लिया, अब ब्रदर के अकॉर्डिंग है, तो माई ब्रदर नेम इज टॉनी, ब्लैंक इज समटाइम्स वेरी नॉटी। मैं मेरे भाई के बारे में बात कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे विच प्रोनाउन यूज करूंगी, ही, बट आई लाइक हिम। माई ग्रैंड मदर ऑल्सो लिव विथ ब्लैंक, हमारे साथ जैसे कि मम्मी पापा भाई बहन के साथ दादा दादी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हुए, अगर हमको उसके बारे में हमारे फ्रेंड्स को या किसी को बताना हो तो वो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, अस, क्योंकि वो हमारे साथ रहते, इसी वजह से। सी हैज़ अ फनी हैबिट, सी कीप्स टॉकिंग टू ब्लैंक, उनकी एक हैबिट्स होती है कि वो आपस में ही खुद से बात करते हैं, तो उनके बारे में वो खुद से ही बात कर रहे हैं, तो पहले तो ग्रैंड मदर है इसलिए वी यूज सी, और अपने ही साथ बात कर रहे हैं तो आएगा हर सेल्फ। उसके बाद आई लव टू प्ले क्रिकेट, वॉट गेम डू ब्लैंक प्ले, जैसे कि हम अपने फ्रेंड को पूछते हैं कि मुझे ये पसंद है, आपको क्या पसंद है, तो इसमें उसने अपने क्रिकेट के बारे में बोला है, तो आपको दूसरों को पूछना होता है तो आप उसको यू प्रोनाउन यूज करते हैं। एंड लास्ट में प्लीज राइट टू ब्लैंक सून विथ बेस्ट विशेस नीरज, ये पूरे नीरज का, नीरज ने बोला कि तुम भी मुझे ये राइट टू मी लिख के भेजना, तो यहाँ पे मी। नाउ some other topics are other pronouns, we use one instead of repeating a singular noun, जैसे कि कोई एक सिंगुलर नाउन हो उसको बारी बारी से अगर हमें उसको नाम बोलना हो तो हम उसको सिंगुलर नाउन को रिपीट करने की जगह वन यूज करेंगे। उसी तरह अगर वो प्लूरल फॉर्म में होगा तो वंस, तो वी यूज वन एंड वंस इन प्लेस ऑफ काउंटेबल नाउन्स, जैसे कि एक है तो एक, ऐसा नहीं बोलेंगे वन बोलेंगे, पर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो 1 2 3 ऐसे काउंटिंग नहीं करेंगे, पर उसकी जगह हम वंस बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखने की जरूरत है, इफ वी यूज काउंटेबल नाउन्स इन वन सिंगुलर फॉर्म वी यूज वन एंड प्लूरल फॉर्म वी यूज वंस। ओके, नाउ some example are that, जैसे कि I am making a sandwich, would you like blank, सैंडविच, तो एक ही सैंडविच के बारे में बात किया है तो हम यहाँ पे वन लगाएंगे। उसी तरह वी हैव मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर, विच ब्लैंक डू यू वांट, आपके पास एक से ज्यादा तरीके के फ्लावर्स हैं तो उसमें अगर आपको उसको कोई भी एक निकालने के लिए बोलना हो तो विच वंस, मतलब कि इन सभी में से आपको कौन सा चाहिए। उसके बाद ये कहे कि लुक एट द फॉलोइंग वर्ड, दे आर यूज एज अ प्रोनाउन, यहाँ पे कई सारे वर्ड्स है उसको आप कई बार प्रोनाउन के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि somebody, somewhere, anybody, anything, nobody, nothing, everyone and everything. We use somebody, someone, something, somewhere in a affirmative sentences. ये जो है सम से रिलेटेड, वो somebody, someone, वो हम जो भी affirmative sentences होते हैं या affirmative sentence के बारे में बात कर रहे होते हैं उसमें यूज करेंगे। We use anybody, anyone, anything, anywhere इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब कि ये जो एनीबडी, एवरीवेयर, वो जो वर्ड्स हम यूज करेंगे वो किस में यूज करेंगे हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस। आई शो सम एग्जांपल्स, जैसे कि देखिए देयर इज समबडी एट द डोर, तो ये कोई डोर पे है तो यहाँ पे वो ऑफरेटिव फॉर्म में है इसीलिए यहाँ पे समबडी यूज करना है। ये आप अच्छी तरह से याद रखना है कि कहीं कौन सी जगह पे हमें समबडी, नोबडी, एनीवेयर और एनीथिंग यूज करना है, वो दिमाग में याद रखना। उसके बाद वी कैन यूज somebody, someone, something and somewhere in a question to make request or an offer। कई बार जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि something, someone, somebody
एंड समवेयर वो हम अफर्मेटिव सेंटेंस में, पर कई बार किसी को कुछ ऑफर करना हो या फिर रिक्वेस्ट करनी हो, उसमें भी आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ऑफर करती हूँ, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, तो उसी वजह से मैंने समथिंग वो यहाँ पे प्रोनाउन यूज़ किया। Another point is that some word are there and include not, it make another pronoun, जैसे कि not plus anybody तो nobody, not plus anywhere तो nowhere, nobody, no one, nothing and nowhere are more emphatic that the not plus form। मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि nobody, आपको ये दिमाग में आएगा कि not plus anybody क्यों नहीं यूज कर सकते, because it is very easy and very emphatic to refer this, so we use nobody in place of not plus anybody। Okay, some example are there, we have nothing for dinner तो nothing, we have not anything for dinner तो which are better, we have nothing for dinner। Okay, then I explain some exercise, fill in the blanks with one or ones। जैसे कि मैंने आपको आगे समझा है कि कौन सी जगह पे हम वन और वन यूज़ करेंगे, तो कोई भी चीज़ हो, काउंटेबल हो या कोई भी, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे वन, और वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम यूज़ करेंगे वंस। जैसे कि I'll have an apple, will you have blank too, एप्पल एक ही है तो वी यूज वन। उसी तरह अनीता सेज दोज आर माई डॉल्स, नेहा से विच ब्लैंक्स, क्योंकि अनीता ने पहले ही बोल दिया है कि वो सारी डॉल मेरी है तो यहाँ पे वी यूज वंस। उसी तरह द ब्लैंक ऑन द टेबल तो उसमें भी वंस, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही डॉल्स दिखा गया है, उसीलिए यहाँ पे जितनी भी ब्लैंक्स है उसमें आप वंस यूज करेंगे। उसके बाद सम सेंटेंस है, उसको मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। Okay, now we explain our another exercise, use of one or ones in place of word or words। यहाँ पे आपको words पूरा सेंटेंस दिया है, उसमें यहाँ पे मैं कई जगह पे आपको ones या one ऐड करना है, वो आपको सेंटेंस को देख के समझना है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ, मिस्टर कपूर्स चिल्ड्रन आर द चिल्ड्रन अंडर द ट्री, तो उसमें क्या आएगा कि मिस्टर कपूर्स चिल्ड्रन आर, तो द चिल्ड्रन यहाँ पे है, आपको उसकी जगह पे द चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल है तो आपको उसकी जगह पे यहाँ पे वंस ऐड करना है, एंड अंडर द ट्री तो यू मेक योर सेंटेंस। नाउ वी एक्सप्लेन अनदर एक्सरसाइज, कंप्लीट द टेबल। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आपको दिया है सम वन और यहाँ पे वन, तो आपको क्या ऐड करेंगे, सम वन, इट मेक सम वन। उसी तरह वन में क्या ऐड करेंगे, एनी, तो एनी वन। यहाँ पे जैसे कि देखिए समबडी, समथिंग, समवेयर, तो सम होगा तो समथिंग, तो यहाँ पे सम की जगह हम एनी लगाएंगे तो एनीथिंग, एनीबडी एंड एनीवेयर। उसी तरह यहाँ पे जो एक पूरा दिया है उसमें आप नो वन तो नो प्लस वन यानी नो वन, एवरी प्लस वन यानी एवरी वन। उसी तरह नो प्लस वेयर तो नो वेयर, उसी तरह नो प्लस एवरी तो एवरीवेयर। नाउ आई एक्सप्लेन अनदर एक्सरसाइज, choose for each blank a suitable word from the above table। जैसे कि यहाँ पे से क्या आएगा कि nobody, everybody, something, someone, उसके अकॉर्डिंग आपको ये ब्लैंक्स फिलअप करनी है। जैसे कि I have not got blank to read, मेरे पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी anything। उसी तरह you look sad, is blank all right, क्या आप उदास दिख रही हो तो सब कुछ अच्छा है तो क्या लिखेंगे, everything। उसके बाद I am hungry, प्लीज गिव मी ब्लैंक टू ईट, जैसे कि मैं भूखी हूँ या भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो तो समथिंग। उसी तरह द ट्रेन इज फुल, देयर इज ब्लैंक टू सिट डाउन, तो ट्रेन पूरी की पूरी फुल है तो बैठने के लिए जगह नहीं है तो नो वेयर। उसी तरह Okay, I explain another exercise, make following sentence negative and interrogative। Suppose one example,
दे वेंट समवेयर इन द इवनिंग, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे डिड नॉट गो समवेयर इन द इवनिंग। अगर यहाँ पे देखो वेंट है इसलिए वो पास्ट फॉर्म डिराइव कर रहा है, तो यहाँ पे हम डिड लगाएंगे और इसका फिर सिंपल वर्ब फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव है, डिड दे गो समवेयर इन द इवनिंग। यहाँ पे एक बात मेंशन करना मैं भूल गई, आपको दिखा देती हूँ कि अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें यहाँ कंपलसरी इंट्रोगेटिव साइन लगानी है। Okay, I explain another exercise. Use the correct form of the given pronoun each blank. जैसे कि थैंक यू, आई विल डू इट ब्लैंक, तो यहाँ पे आई दिया है तो आई से रिलेटेड कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, माई सेल्फ। द डॉग हैज ब्रोकन ब्लैंक लेग, तो यहाँ पे ईट है तो ईट का क्या आएगा, इट्स। नीरू हेल्प्स ब्लैंक मदर इन द हाउस, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें सी दिया है तो सी का कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, हर। उसके बाद वी एंजॉय ब्लैंक एट द पार्टी लास्ट नाइट, तो वी का यहाँ पे हम यूज करेंगे अवर सेल्व्स। नाउ वी एक्सप्लेन अनदर एक्सरसाइज। Replace the underlined word with suitable pronouns. Write your sentence with to or for या without to और for। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे कि जॉन गेव द बुक टू मैरी, यहाँ पे कौन सा होगा, मैरी से रिलेटेड कि जॉन गेव द बुक टू हर। अब यहाँ पे विदाउट टू को यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, जैसे कि जॉन गेव हर द बुक। नाउ आई एक्सप्लेन सम अनदर एग्जाम्पल। इसके पहले मैंने आपको समझाया कि एक जो सेंटेंस है उसको आपको विथ टू और विदाउट टू यूज करके करना है। मैं आपको एक सेंटेंस और एक्सप्लेन करके समझाती हूँ, जैसे कि माई सिस्टर एंड आई told a story to my little brother। यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले मैंने विदाउट टू से बना के आपको समझाती हूँ कि माई सिस्टर एंड आई, इसकी जगह कौन सा प्रोनाउन होगा, वी, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म होगा उस पर चली जाऊंगी, तो वी टोल्ड, फिर माई लिटल ब्रदर की जगह ही बाद में अ स्टोरी यानी कि ऑब्जेक्ट। उसी तरह उसी सेंटेंस को विथ टू यूज करके आपको बनाना है, तो फिर आप कैसे बनाओगे, माई सिस्टर एंड आई यूज वी टोल्ड अ स्टोरी to him in place of my little brother. Okay, I'll send all the exercise with answer by PDF. Thank you.